Okay, that's great. Good. So just a moment. Start it right now. Actually, okay. Okay. Let me check out. सना ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है. ओके, एक मिनट सना. ओके, ठीक है. सो ओपन हो गया यहाँ. And let me check for Sana. Yes, Sana, what question you have told? Okay. Give me a second. Can you hear me, guys? Yes, sir. ये कहाँ से क्वेश्चन लिया आपने? It was in exercise. RS Agarwal के एक्सरसाइज में ये है? Yes, sir. Okay, let me see. एक सेकंड. मुझे दिखा क्यों नहीं फिर ये वाला? Okay, हो सकता है मेरे में ना दिया हो. कोई बात नहीं. We will see it. चलो. So, can you read the question, please? AB and AC are two chords of a circle of radius r such that AB is equal to 2AC. एक मिनट. यहाँ पर AB और AC दो कॉर्ड्स हैं. रेडियस हो गया r और AB is 2AC. मतलब AB बड़ा है, AC छोटा है, right? Okay. Next, read next. Read the next. And Q are the distances of AB and AC from the center. Then prove that 4Q square is equal to P square plus 3R square. Okay, fine, fine. ठीक है. We will do it right now. Don't worry. P and Q are the distances of AB and AC from the center. इसमें क्या दिक्कत आई आप लोगों को? मुझे समझ नहीं आया. चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. मेरे साथ सॉल्व करना. ठीक है? Ready? Anika, can you hear me? Anika? Yeah. Okay. So you can consider here, guys, this is a circle and this is a center point. Okay? Now, they are saying that AB and AC are two chords, but condition what they have given. AB is double of AC. मतलब AB जो होगा वो बड़ा होगा. बड़ा कितना बड़ा? Double हो जाएगा. So suppose that this is my AB and this is my AC. I will just show you AC line. छोटा सा line मैं draw करता हूँ यहाँ पे. Can you see here the difference? Can you see the difference, guys? Yes, sir. अच्छा, मैंने कॉर्ड इधर बनाया, मेरी मर्जी कहीं भी बनाओ. ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही बनाना है. यू कैन ड्रॉ एनीवेयर. आप किधर भी बना लो, ये आपकी मर्जी है. कहीं इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि किधर बनाना है, तो इसलिए आपके साथ भी कोई कंडीशन नहीं. आपने कॉर्ड यहाँ बनाया, यू कैन ड्रॉ द कॉर्ड लाइक दिस. ऐसे बना लो, बड़ा वाला कॉर्ड कहीं भी बना लो, डजंट मैटर फॉर यू. क्लियर है? क्लियर है? मैंने ऐसे बनाया है. चलो ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा because this is distance and this is also distance, so I need to draw it. So मैंने परपेंडिकुलर लाइंस खींच दिए हैं. इसको मैं नाम देता हूँ AC, इसको मैं नाम देता हूँ AB. ये O है. AB के लिए कौन हो जाएगा? P हो जाएगा. So I can give this name as P. और AC के लिए कौन हो जाएगा? तो Q हो जाएगा.
So I will give this name as Q. कोई problem है इसमें? Any problem? And Sana, do you have problem? Sir. And for radius, I will join this line. देखो blue line में radius के लिए draw कर रहा हूँ. Can you see the radius? This is radius. अब एक बात बताओ. According to this, अगर हमने मान लिया कि AC is X. AC क्या है? X है. Correct? तो AB क्या हो जाएगा? AB will be 2X हो जाएगा. Right? Yes, sir. तो देखो, if I will give the names, मैं यहाँ पे break कर रहा है तो मैं एक नाम दे देता हूँ. क्या नाम दे दूँ जी इसको? OL दे देता हूँ and OM दे देता हूँ. कोई दिक्कत है इसमें? Doubt is this that AB and AC, so point A is only there, na? So why are we making two different segments for it? Shouldn't Oh, AB sorry. Oh, okay. ओहो, ये चीज मेरे दिमाग में आई नहीं. मैंने क्वेश्चन थे. ओहो, ये ऑलवेज मैं गलती करता हूँ. Sorry guys. Figure I need to rub it. Sorry. हाँ, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये एक है दो है. Right. Give me a moment. तो ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AB और ये हो जाएगा छोटा सा AC ले लो. ठीक है. And you can consider this one as the center. That's good Sana. आपने बता दिया पहले ही, तो बहुत बड़ी गलती कर लेते. ठीक है. और यहाँ से मैं नेमिंग्स कर देता हूँ AB और AC. यस, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर वर्डिंग्स पे. ओके. Then I need to draw the perpendicular. So this perpendicular, and I will draw another perpendicular here. Okay. So ये हो गया. इसको बोलेंगे P, इसको बोलेंगे Q, ये L हो जाएगा. इसको M ले लो, ये O हो जाएगा. और कुछ नहीं है. ठीक है. So now ये हमको दिख रहा है. अच्छा, रेडियस कहाँ गया जी इसका? So radius I will draw with the help of the black pen. This is your radius. Can you see here guys? ये black वाला हमारा radius हो गया. Right? कोई दिक्कत? No, sir. इसको यहाँ से इसको भी जोड़ दो, ये भी रेडियस. इसको भी जोड़ दो तो ये भी रेडियस कहलाएगा आपका. ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. ये P है, ये Q है, ये OM is Q. I will write everything here. तो फिगर बन गया गाइस हमारा. राइट? फिगर हमारा रेडी है. अभी तो कोई गड़बड़ी नहीं फिगर में. नहीं, कोई फिगर में गड़बड़ी नहीं है. सो गिव मी अ मोमेंट. एक सेकेंड. आई एम जस्ट अपलोडिंग द फिगर हियर. यस, फिगर रेडी हो गया. फिगर में कोई दिक्कत सना बनाने में? नो. अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू द रूल AB is twice of AC दे रखा है. राइट? And we know very well that OL is perpendicular to AB. So हम यहाँ लिख सकते हैं AL is equals to LB. Can we write that? Which is half of AB. Which is what? Half of AB. Okay. And यहाँ पे हम लिख सकते हैं OM is perpendicular to AC. So AM जो है वो MC के इक्वल हो जाएगा. And that will be half of AC. ठीक है guys. एक रिलेशनशिप यहाँ हमको और मिल रहा है. The relationship is AB is twice of AC. उसको देखते हैं कहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे हम. अभी तो हमारे पास जो रिलेशन है वो यूज करो. We have this relationship, this triangle. Can you see this triangle here guys? Okay. So इस दो triangles हैं guys. एक ये triangle है और एक हमारे पास ये वाला triangle है. Can you see that? So इन दोनों triangles का इस्तेमाल करते हैं अभी हम. So इन दोनों triangles का इस्तेमाल करके चलो देखते हैं क्या मिलता है हमको. So we can see here OA in triangle AOL. Sir, how do we know that हमें O से L तक एक line बनाना है that is perpendicular so that we get 9? So distances दे रखा है ना. Can you see that? From the center. No, sir, solving तो दूर की बात है, but like making a figure which is similar to what you नहीं have. नहीं नहीं, एक मिनट. जो ये कहता है
कि P जो है वो AB सेंटर से QP डिस्टेंस पे है, am I right? तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां से इसकी डिस्टेंस P है, तो शॉर्टेस्ट हम स्ट्रेट लाइन वाला ही बना सकते हैं ना, यही ना सबसे नजदीक का डिस्टेंस होगा। इफ आई विल ऐसे नहीं बना सकते ना डिस्टेंस में, या ऐसे बनाएंगे डिस्टेंस, ये आप बताओ। डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो ये क्या बोला कि डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, मैं रेड पेन यूज करता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर इज पी। देख रहे हो आप, दिया हुआ है ना। तो हमें वो, अब हमें मालूम है कि अगर वो बनाएंगे सो इट विल बिकम अ परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर बना देंगे क्योंकि ये 90 बनाना है हमें, सो इट विल बिकम हाफ। अंडरस्टैंड? ओके, वो डिस्टेंस दे रखा है तो आप परपेंडिकुलर ही लेते हैं उस डिस्टेंस को जनरली, ओके, बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन में ही डिस्टेंस ट्रेवल कराते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ठीक है। सो ओ ए क्या है जी? रेडियस का स्क्वायर। ओ एल क्या है? ओ एल इज पी स्क्वायर। और ए एल क्या मान लें हम? ए एल कुछ मान लें क्या? नहीं, ए एल को एल ही रहने दो, ठीक है। सो ए एल को ए एल स्क्वायर ही हम छोड़ देते हैं। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? हेलो? नो सर। हाँ, चलो इसको यहीं छोड़ दिया। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। ट्रायंगल ए ओ एम। ट्रायंगल ए ओ एम में जब हम जाते हैं सो वी विल गेट व्हाट? ओ ए स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर, और क्या मिलेगा? ए एम स्क्वायर। सो यहां से देखो, ओ आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं जी? तो क्यू स्क्वायर, और ए एम को ए एम स्क्वायर लिख दो। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा, अब एक देखो, क्या ए एल और ए एम में रिलेशनशिप है क्या? डू वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन ए एल एंड ए एम? A is common. नहीं, ए इज कॉमन ऐसे नहीं बोलते हैं। देखो दिखाता हूँ, आई विल जस्ट गो इन नेक्स्ट पेज। एक सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज में इसको अपलोड करके दिखाता हूँ क्या रिलेशनशिप है वी हैव। देखो मैंने वहीं से उठा लिया है। वी नो वेरी वेल AB is twice of AC. Do we know that? दिया दे रखा है क्वेश्चन में हमको, करेक्ट? दे रखा है ना जी? हेलो? Yes, sir. ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में हमको? नहीं देखा है तो यहाँ देखो, it is given here. Can you see that? Now come to the things. Come to the things. मैं AC को let AC is X. Let AC is X. तो AC X हो गया तो AB क्या हो जाएगा? AB will be 2X. कोई दिक्कत है यहाँ पे? Yes or no जो बोलो ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो AL हम क्या लिख सकते हैं? AL is half of AB. So we can write down half of AB means half of 2X. So AL की वैल्यू क्या हो जाएगी? AL की वैल्यू X हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ से? Similarly, AM will be half of AC. So AM क्या हो जाएगा? Half of X. AM की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? हाफ ऑफ X हो जाएगी। कोई यहाँ प्रॉब्लम है आपको? यहाँ प्रॉब्लम? नो। तो ये जो इक्वेशंस हमें निकले थे, इसमें हम, अब बोलो सर आपने R वाला क्यों नहीं डिस्टर्ब किया? R वाला इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया बिकॉज मुझे आंसर R में चाहिए, मुझे आंसर R के फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए मैंने R वाले को डिस्टर्ब नहीं किया। AL और AM के रिलेशंस को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। So you can see I'm going to write down here R square is equals to P square. AL को भी हमने क्या लिखा था? It is a X square. क्या लिखा था हमने? X square. तो यहाँ से देखो, can I write down X square is R square minus P square? Can I write that? Can I write that? Yes, sir. And यहाँ से अगर आप देखो तो R square is equals to Q square, और ये हो जाएगा X by 2 का होल स्क्वायर, राइट? सो यहाँ से अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं फर्दर,
सो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 which is equals to 4r square is equals to 4q square plus x square। तो x स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. अच्छा इसमें 3 भी है ना कहीं पर, एक मिनट रुको तो, नहीं 3 नहीं है, चलो बढ़िया बढ़िया, यस ठीक है। यहाँ तक प्रूव हो गया गाइस? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में किसी को? तो मुझे बताओ अभी। सना, डू यू हैव एनी डाउट टिल हियर? No, sir. ओके, अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल। इज योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है गाइस? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल है ना? तो Yeah. हम अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? आर स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर। सो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन मुझे मिला 4 स्क्वायर, एक सेकेंड, 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। गाइस देखो दोनों साइड ये इक्वल हैं, so can I write it down here? R square minus p square is equals to 4r square minus 4q square लिख सकते हैं? सना tell me, सना। Yes. Now what will happen? अरेंज कर लो, इसको उठाओ इधर ले जाओ, और इन सबको उठा के इधर ले आओ, क्योंकि हमें चाहिए 4q स्क्वायर स्टार्टिंग में। सो ये बन जाएगा प्लस 4q स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर, ये p इधर आएगा तो p स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में आ गया। सो 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है कैसे बना ये? Yes, sir. सना डू यू क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अभी इसमें? अभी नहीं। ओके, तो गाइस आप लोग इसको इसको ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आफ्टर द क्लास प्लीज आप इस पर एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? इज इट क्लियर? Just go to the third slide for a second. ओके, थर्ड स्लाइड, ओके हियर इज द थर्ड स्लाइड। Yes, so can you go to the fourth one now? फोर्थ वन, ओके। डन, Yes, sir. ओके चले आगे। Yes. Yes, sir. ओके फाइन, गिव मी अ मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा जो आपका डाउट है सना, आई एम जस्ट चेकिंग दैट। Okay, give me a moment please, give me a second। give me a second। अपलोडिंग गाइस, ये आपकी दिक्कत जो है मैं अभी अपलोड कर देता हूँ।
Okay. This is your doubt. Can you see that? Can you see that? Hello? I can. Yes, Okay. sir. ठीक है, तो प्लीज रीड इट फास्ट. पहले इसको रीड करो. Read loud. So should I? Yes, go for it. In the adjoining figure, OPQR is a square. The circle drawn with the center O cuts the square in x and y. Prove that OX is equal to OY. ओके, ठीक है. अब इसमें देखो सिंपल सा कहता क्या है कि हमको क्या प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूव OX is equals to OY. हमको प्रूव करना है ये और ये इक्वल है. करेक्ट गाइस, ये प्रूफ करना है मुझे. Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज देखो जरा सिंपल सी. ये बोलता है ना कि OPQR इज ए स्क्वायर है. क्या बोलता है ये? स्क्वायर है. तो देखो मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ. पहले मैं समझा रहा हूँ कि करना कैसे है, तो सोचना क्या है. तो ये स्क्वायर हो गया हमारा. सना, कैन यू टेल मी स्क्वायर में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर? All sides are equal. ऑल साइड्स इक्वल. तो क्या हम बोल सकते हैं कि QR ये वाला और ये वाला इक्वल है? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? Yeah. Yes, sir. अच्छा, दूसरी चीज, सपोज दैट यहाँ पर देखो ये y कट करता है इसको और यहाँ पे x कट करता है. तो सपोज दैट कि हमने एग्जांपल ये प्रूफ कर दिया कि YR जो है वो XP के इक्वल है. हमने मान लो प्रूफ कर दिया एनी हाउ कि ये वाला ब्लैक पोर्शन और ये ब्लैक पोर्शन दोनों इक्वल हो गए. तो देखो इक्वल कर देने पे सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यू विल गेट इट QY is equals to QX. मिल जाएगा हमको. सना, मिल जाएगा हमको. Yes, sir. तो हमारा एम क्या है अभी कि ये जो YR है और QP है इनको तो पहले इक्वल कर लो. कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे. ठीक है, सो आई विल सॉल्व. तो मेन मकसद देखो यही है जी कि हमको स्क्वायर बोल रखा था. स्क्वायर में YR को अगर हम इक्वल कर दें, YR को इक्वल कर दें XP से, तो जी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको गिवन प्रूव दैट मिल जाएगा हमें. राइट. तो अब हमारा एम क्या होगा कि YR और XP को इक्वल करना. उसके लिए हम वर्कआउट करेंगे. But sir, isn't it very easy? हाँ, ये इजी है. आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू इट गाइस. ठीक है. Anika, can you hear me? Anika. I can hear you. Okay. Now listen me very very carefully. We will write OP. by solution लिख रहा हूँ. OPQR is a square. Therefore, OP is equals to OR is equals to QR is equals to QP. एक स्टेटमेंट तो ये हो गया गाइस. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. ओके. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ज्वाइन अ लाइन. मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा ना फिगर बड़ा कर लेता हूँ. और यह फिगर बड़ा क्या, एक लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दो. सो आर यू एबल टू गेट टू ट्राइंगल्स नाउ? Yes, sir. We are. एक ट्राइंगल ये हो जाएगा और दूसरा ट्राइंगल, ओ ये भी रेड कर रहा हूँ मैं. दूसरा ट्राइंगल हम, हो ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा. ओके, दूसरा ट्राइंगल ये हो जाएगा. कैन यू सी सना? कैन यू सी सना? Yes, sir. तो हम एक ट्राइंगल को देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए. अच्छा, ये भी 90 होगा गाइस क्योंकि ये स्क्वायर है. राइट, 90 होगा ना जी. Yes, all angles are 90 degree. तो ये R हो गया, ये Y हो गया, ये O हो गया. और अगर मुझे आप सेम ट्राइंगल ड्रॉ करवाते हो वापस से, तो ये कौन सा ट्राइंगल मैं लूंगा जी? मैं इसको लूंगा, एक मिनट, मैं O यहाँ पर है
तो इधर P हो जाना चाहिए और इधर X हो जाना चाहिए, ये भी 90। अब मेरी बात सुनो, OY और OX क्या रेडियस हो जाएंगे? विल बी द रेडियस सना, आर दे रेडियस? Yes, sir. ओके तो चलो पहले तो इनको कॉन्ग्रुएंट कर लो, कॉन्ग्रुएंट कर लो। सो हम इसको कॉन्ग्रुएंट मतलब ट्रायंगल YRO एंड ट्रायंगल XPO, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं जी हम लोग, OY इज इक्वल्स टू OX, कोई प्रॉब्लम? बिकॉज ऑफ रेडियस, कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. ओके उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, OR इज इक्वल टू OP, वाई? बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ये साइड इक्वल हो जाएगा। देखो OP इज इक्वल टू R बोल रखा है ऑलरेडी हमने, कोई हाँ ना तो ओके। नाउ देयरफॉर YRO एंड XPO इज कमिंग 90, Yes, sir. ये दोनों 90 होंगे। तो अब Yes. ये देखो, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है और 90 इक्वल ले लिया हमने, तो ये किसके बेसिस पे Right angle right side. RHS. नहीं, RHS क्राइटेरिया, hypotenuse. Yes. So YRO is congruent to XPO with the help of RHS criteria. Sana, do you clear till here? Yes, sir. So from if it is coming congruent, so can we say that YR is equal to XP? Yeah. Can we say that? Yes, sir. By CPCT. Now मैं यहाँ छोटा सा लाइन लिखने जा रहा हूँ। We know QR is equals to QP and we know YR is equal to XP. Equation number 1, equation number 2. Now subtract it. So QY will be equals to QX. यही चीज है? Yes, sir. Hence proved. Clear हो गया? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? Thank you. एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, जब भी आप लोग डाउट पूछते हो ना अपना, ठीक है, डाउट पूछने के बाद जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद जरा से भी टाइम मिले, बैठकर उसको लिखो। मैं पीपीटी भेज दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज, अनिका एंड सना बोथ ऑफ यू, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट, सब नहीं करो, जो डाउट से क्वेश्चन है उनको जो मैं जैसे मैंने लिखा है आप उसको लिखो वापस से आफ्टर द क्लास, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको वो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्या है सना का डाउट? लेट मी सी। Prove that two different circles cannot intersect each other more than 2 points. Okay. ये वाला important है भी क्या? I don't think so. This is Sana, you can leave this one. ये important उतना नहीं लग रहा है, इसमें आप बेकार में टाइम एंड सब कुछ वेस्ट करोगे, okay? Yeah, it's not very important. You can leave this part, okay? Yeah. Because इस सर्कल्स में इतने भी डीप में वो नहीं कर देंगे आपको की प्रॉब्लम। इस सर्कल्स में फिक्स रहते हैं क्वेश्चंस कि क्या आएंगे कैसे आएंगे, क्लियर है? तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप उसी में से करोगे, ठीक है? अनिका, व्हाट्स योर डाउट्स? Sir, I have been doing it and I don't really have doubts yet. I'm halfway through the first exercise. I'm getting most of the questions right, which I'm not. I'm like solving them again and again. So I try to get everything right. Okay. चलो गाइस, कोई नहीं, तो मैं थोड़ा अब आगे बढ़ता हूँ। तो I want to ask one thing. Yes, पूछिए। One second, I'll just take it out. So there was, just a second. Yeah, in 12th, there is question number 4. आवाज नहीं आ रही सही से। But if we
I think Anika ka mic unmuted. Anika, yes, हाँ. Tell me now. Yeah, so there is question number 4. It says that in a circle of radius 5 centimeter, AB and CD are two parallel chords of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. ये तो मैंने बना के दिखाया भी है आपको. हाँ सर, पर मेरा कुछ और चीज है डाउट. हाँ, बोलिए बोलिए. Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the circle on the opposite sides of the circle. ये रहा क्वेश्चन. So on the same sides of the circle, I'm not able to do on the सेंटर, opposite sides. सेम साइड ऑफ सेंटर, अपोजिट साइड ऑफ सेंटर बोलता है. Yeah, so मैंने same side of center नहीं हो रहा है, मुझसे गलत आ रहा है वो. I don't know why, but मेरा on opposite side सही आ रहा है. ओके, चलो चलो सेम साइड कर देते हैं फिर. ठीक है. क्या कहता है, एक कॉर्ड है 8 का, एक है 6 का. तो चलो ये हो जाएगा 6 का. गाइस आप लोगों को बता दूं, जितना डायमीटर के पास जाओगे कॉर्ड बड़ा होता है. डू यू नो दैट? Yes, sir. सॉरी, Yes. जितना डायमीटर मतलब जितना सेंटर के पास जाओगे कॉर्ड Yeah. आपका उतना बड़ा होता है. ऑलवेज याद रखना. ठीक है. तो इसको ले लेते हैं ए बी, इसको ले लेते हैं सी डी. मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ सीधा ड्रॉ कर देता हूँ. तो देखो सेंटर के सेम साइड, दोनों लाइन दोनों सेम साइड हैं. कैन यू सी दैट? Sir. ओके, इसको O मान लो, इस पॉइंट को P मान लो, इसको आप L मान लो. ठीक है. और क्या मान लोगे? और ठीक है, मैं ये कितना है जी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 बिकॉज इट्स मेक्स 90, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4. एंड मैं रेडियस भी ड्रॉ कर देता हूँ. सो रेडियस के लिए एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई. कैन यू सी दैट? कैन यू सी Yes. दैट? So this is going to be 5 and this line will be 5. Anika, Sana, do you have any doubt in figure now? No, sir. फिगर में जब डाउट नहीं है तो इतना इजी सवाल कैसे नहीं बन रहा है? No, हाँ? I was drawing the figure wrong. ओके. Now I can do it, sir. You don't need to solve it. अब देखो मैं बता ही देता हूँ, इतना कर दिया. ये वाला हो जाए, इस ट्रायंगल को देखोगे. इफ आई ड्रॉ यहाँ पे, एक मिनट यार, ये ऐसे कैसे ऐसे दिखाओ, इसको पलट दो. हाँ, यस, पलट दिया. ओके, कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes. ये बड़ा छोटा जो भी है. ओके, आप लोग को फिगर बनाना, ये जो मैं साइड में बनाता हूँ ना, इसको कोई जरूरत नहीं है साइड वाला फिगर, बट मैं समझाने के लिए बनाता हूँ आप लोगों को. सो ये P हो जाएगा और ये हो जाएगा COL. तो गाइज ये 5 है, ये भी 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, राइट? सो यू कैन सी हियर they need what? Calculate the distance between the chord. Distance between the chord means they need LP. What they need? LP. So LP कैसे निकालेंगे हम? OL minus OP. So this is 4 and this is 3. So LP will be 1. Clear है? Yes, sir. और ये मैंने बना के दिखाया था. यही अपोजिट होता तो इन दोनों को ऐड करना पड़ता, तो 7 हो जाता आंसर. इसका 1 आता है, इसका 7 आता है. तो हो गया था, इजी था. ठीक है, चलो और कुछ, और कुछ. हेलो Sir. Yes. अनिका, एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाइस. ठीक है. इस चैप्टर, ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट्स में है. तो हमने अभी तक पहला पार्ट कवर किया है. पहले पार्ट में मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ाया, कि आर्क इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है, इक्वल एंगल, सॉरी इक्वल डिस्टेंसेस पे है, ये सब बातें की थी हमने. परपेंडिकुलर बनाता है, हाफ हो जाता है कॉर्ड हमारा, ये सब बात हमने की थी. नाउ इन सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रायंगल वी हैव 3 थ्योरम्स अगेन. वी हैव व्हाट? 3 थ्योरम्स अगेन. ठीक है. तो हम सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रायंगल पे जा रहे हैं गाइस, और ये आसान है बट इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो. क्लियर? क्लियर? Yes. So we are going for second part. Sorry, triangle में बोल रहा हूँ. Second part of circle.
आई एम अपलोडिंग द थ्योरम 1, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। लिखो इसको हाथ से पहले। लिख लिया गाइस? Yes, sir. Sana, have you noted? Sana, okay, okay. स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं गाइस, ध्यान से देखेंगे। दे आर सेइंग दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of circle at center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of circle. ठीक है सना, लिख लिया सना? ओके, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है, बहुत लो साउंड में। हेलो? Okay, sir. Yeah. So now this is a circle. This is what? A circle. This is a center. This is what? A center. So now you can see here, guys, I have taken an arc which is making, this is arc. ये कौन सा है जी? AB arc है ना हमारे पास, right? So AB arc is making angle where? AB arc is making angle at the center. कोई दिक्कत है यहाँ पे? Anika, do you have any problem? No, sir. तो सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर कैसे होगा? तो ऐसे सेंटर पे बनता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल का क्या मतलब है कि सर्कल पे एंगल बनाएगा। कहाँ एंगल बनाएगा? सर्कल पे एंगल। तो देखो सर्कल पे एंगल यहां भी बन सकता है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. मैं और भी एग्जांपल्स आपको देता हूं गाइस, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ कहाँ बन सकता है? गिव मी अ सेकंड। सेम ए बी लिया तो इधर भी ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं। एंड हियर इज द सेंटर, हियर इज व्हाट? सेंटर ए बी ओ, इसको सी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव अ सेंटर हियर and they are making angles like this. Can you see here guys? गाइस एक चीज ध्यान से देखो, इन सारे चीजों में एक चीज मैं आपको एक, ओह माय गॉड, गिव मी अ मोमेंट, व्हाट आई डिड, ओह बच गया, चलो चलो बच गया। गिव मी अ मोमेंट गाइस। गाइस इन तीनों फिगर में अगर आप एक चीज देखोगे तो एक एंगल सेंटर पे बन रहा है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? So we can. और दूसरा एंगल कहां बन रहा है? ऑन द सर्कमफेरेंस, मतलब ये सर्कमफेरेंस का पार्ट है ना, हमारा सर्कल का पार्ट है, वहां पे एंगल। Three of them are on circumference. क्या चीज? There are 3 angles on the circumference. नहीं, 3 एंगल्स हैं, जो भी एंगल्स हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने 3 टाइप्स बनाए हैं। मैंने क्या बनाया है? टाइप्स बनाया है, ठीक है? ये तीनों टाइप्स बनाया है मैंने। सो यू कैन सी हियर
that we have what? We have center पे angle and we have circle पे angle. Can you see that? दो Yes, sir. बातें, सेंटर पे एंगल, सेंटर पे और सर्कल पे. तो according to the rule, if this is theta, if this is what? Theta, so this must be 2 theta. Take an example. If this is going to be 30 degree, so this will become 60 degree. If this is going to be 10 degree, this will be 20 degree. If this is going to be 30 degree, this will be 60 degree. Do you clear? Yeah. Anika and Sana, both are you clear? Yes. मतलब कि सेंटर पे डबल बनेगा सर्कल के, लेकिन कंडीशन क्या है जी? आर्क मस्ट बी सेम. कंडीशन क्या है? आर्क मस्ट बी सेम. इज दिस क्लियर विद यू? इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir. और दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो किताब में नहीं लिखी कहीं, इसका रुख किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ. इसका जो मुंह है क्लोज किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ एरो बना रहा है ये. कैन यू सी दैट? Yes, sir, we can. तो ऊपर की तरफ ही ये भी एरो बनाएगा, तभी इसको यूज कर सकते हो. आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि सपोज दैट मेरे पास कुछ ऐसा मौका आता है, ये सेंटर पे बना दिया, गिव मी अ सेकंड, ये सेंटर पे बना दिया और कहता है जी इधर एक ऐसे बना दिया. तो इसका एरो किधर जा रहा है? इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला एरो नीचे की तरफ जा रहा है. तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये 2 थीटा नहीं होगा. दिस इज रॉन्ग. अंडरस्टैंड? इसके लिए अलग तरीका है, वो मैं बताऊंगा आपको. क्लियर है गाइस? तो जिधर ये एरो बन रहा है मतलब ये ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले ही मतलब इसके एबी के ऊपर ही ढूंढना है आपको, एबी के नीचे नहीं ढूंढना. डू यू क्लियर? देखो यहाँ एबी के ऊपर सी बन रहा है. कैन यू सी दैट? Can you see in the last? Yes, sir, we can. In the last ये AB B के ऊपर ही बन रहा है. So we have to look on top of the AB. मतलब हमको AB R के ऊपर में ही देखना है. AB R के नीचे में आ जाएगा then ये लॉ नहीं काम करेगा. This is not working. Clear है? Clear है अनिका and Sana? Yes, sir, it is. Okay. Next law. याद रखना, ये लॉ मैं पूछूंगा. Next law. Give me a moment. आसान है, टफ नहीं है गाइस. इट्स वेरी इजी. ओके? Yes, sir. बहुत आसान है. इसको जरा नोट करो, नोट डाउन. चलो नोट अगर कर लियो तो मुझे बताना. Sir, done. अनिका, सना, यू आर डन? Yes, sir. कहता क्या है क्वेश्चन में कि एंगल इन सेमी सर्कल, ये क्या है गाइस? ये हमारा डायमीटर है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. अब ये जो एंगल बनाएगा कहाँ? सर्कल पे. कहाँ बनाएगा ये एंगल? सर्कल पे. तो देखो इसने बनाया एंगल सर्कल पे, इसको कहते हैं सेमी सर्कल. इसको क्या बोलेंगे? ये सेमी सर्कल हो गया ना जी, Yes, sir. क्योंकि आधा हम सेमी सर्कल बोलते हैं. तो ये याद रखना कि अगर कोई डायामीटर एंगल बना रहा है सर्कल पे, सो डायामीटर विल मेक ऑलवेज 90. डू यू क्लियर गाइस? ऑलवेज मेक 90, चाहे वो कहीं भी बनाए, चाहे वो यहां बनाए. देखो मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं. वो यहां भी अगर बनाता है ना, सो इट विल बी व्हाट? इट विल बी 90. अगर वो यहां भी बनाता है, गिव मी अ सेकंड, यहां भी बनाता है, सो इट विल मेक व्हाट? इट विल मेक 90. अगर वो यहां भी बनाता है, आई विल शो यू, यहां भी उसने बनाया, देखो. कैन यू सी दैट? इतने सारे थ्योरम्स याद कैसे होंगे? प्रैक्टिस. So we just keep reading them every day. यस, आपको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा. ठीक है?
तो ऊपर वाले में सिर्फ 3 टाइप से थ्योरम थे ना। बताओ थ्योरम्स मैंने कहीं आपको याद करने के लिए बोला क्या? हेलो? No, sir. We don't remember, then how will we apply them in questions? देखो सिंपल सा, कॉर्ड की बात आती है तो कॉर्ड वाला अप्लाई करेंगे, एंगल की बात आएगी तो अभी ऐसे एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कॉर्ड टेंजेंट कुछ बात किया, यहाँ पे बताओ। सो ये प्रैक्टिस से अपने आप आएगा गाइस, भागो मत, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको आसान लगेगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, कोई दवाई कोई कुछ नहीं है इसके लिए, ओनली वन वे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से भागो नहीं, प्रैक्टिस से जितना भागोगे उतनी मुसीबत आपके पीछे भागेगी, ठीक है। Yes, sir. इसलिए ये मत सोचो कि कैसे करेंगे, क्या करते जाओ, करते जाओ, क्या रिजल्ट आना है डोंट वरी, रिजल्ट के लिए हम वरीड नहीं है, ठीक है, बस करते जाओ अभी, अंडरस्टैंड। और ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस से आती है। एक बात बताओ, जब आप क्लास 2 में थे या क्लास 1 में थे तो 10 का टेबल याद करना पड़ता था आपको? बताइए। Yes, sir. 8 का टेबल मम्मी पापा सुनते थे, टीचर क्लास में चलो 8 का टेबल सुनाओ, उस वक्त 8 का टेबल आपको टफ लगता था या नहीं लगता था? लगता था। आज 8 का टेबल टफ है क्या? मुझे बताओ, 8 का टेबल आप लोग के लिए टफ है आज? क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ में घुल गया है, टेबल जो है वो आपकी लाइफ में आ गया है, दैट्स व्हाई यू डोंट फील टफ इन टेबल। एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, पहले क्लास 2 3 के जो बच्चे हैं उनको आप 3 5 6 7 टाइम्स 4 दे दो, वो रोने लग जाएंगे, क्या दे दिया मुझे। होता था ना ऐसे या नहीं होता था? बताओ। तो बोला था। यस, सो वही चीज यहाँ भी आपके साथ हो रही है, बिकॉज यू आर न्यू, तो डर लग रहा है, डरना नहीं है, उसके अगेंस्ट फाइट करो, ट्राई करो। मैं बैठा हूं यहाँ बताने के लिए, मैं स्लो चल रहा हूँ, अदरवाइज सर्कल आई कैन फिनिश इन 3 days। आपके स्कूल के टीचर जब शुरू करेंगे या उन्होंने करना होगा, यू कैन सी देम 4 days 3 days में पूरा सर्कल खत्म कर देंगे, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, आपकी साइड से खड़ा हूँ, ओके। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस, ज्यादा नहीं है, Yes, sir. ठीक है। चलो, तो दूसरा कहता है कि अगर सेमी, देखो पहला क्या था, बहुत आसान है, मैं रिपीट करवा देता हूं। पहले वाले में ये था कि जी एंगल डबल हो जाएगा सेंटर पे। दूसरा वाला क्या कहता है जी कि से अगर डायमीटर से एंगल बन रहा है तो 90 हो जाएगा। इस बात को याद रखने में कितनी टफ जॉब है, मुझे बताओ। इज देयर एनी टफ इन दिस? No, sir. सना? So, नहीं, इतना लो साउंड कैसे? चलो, सो इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Sir. और उसके बाद जो दूसरा थ्योरम है वो इसका अपोजिट भाई है, कि अगर 90 बना रहे हैं, अपोजिट भाई है मतलब अगर 90 बना रहा है तो जी वो डायामीटर होगा या सेमी सर्कल होगा, उसका उल्टा भाई ये बात कहता है। कैन यू सी दैट? द आर्क ऑफ सर्कल सबटेंडिंग एट राइट एंगल, मतलब अगर वो 90 बनाता है तो सेमी सर्कल हो जाएगा। तो बस आपको दो ही चीज तो याद रखनी है कि जी डायमीटर से 90 बनता है, और 90 अगर बनता है तो वो डायमीटर बनाता है, यही बात है, याद रखनी है ना आपको, और कुछ याद रखना है? Yes, sir. और द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस पार्ट, सेकंड पार्ट का लास्ट थ्योरम बहुत ही खतरनाक है, याद करना बहुत टफ जॉब हो जाएगा। प्लीज रीड द थिंग, इतना छोटा मगर मोटा। प्लीज रीड दिस प्लीज। angles in the same segment of a circle are equal. मेरी बात ध्यान से सुनना। दिस इज अ आर्क, दिस इज व्हाट? आर्क, ए बी आर्क। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? No, sir. Is AB arc making angle at C? Yes, sir, it is. So if this is theta, if this is theta, so if this makes angle here, this makes angle here, this makes angle here. Can you see that? So many angles I have drawn. Can you see that? C, D, E, F. I will draw one more. I will draw one more. देखो
मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, एफ जी। सर्कल पे जितने भी एंगल्स ए बी के द्वारा बनेंगे, एनी एंगल मेड बाय ए बी आर्क, ये सिंबल आर्क का होता है, मेड बाय ए बी, दोज विल बी इक्वल, दोज Okay. विल बी इक्वल। मतलब ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। क्यों थीटा जी? क्योंकि सब के सब एक ही पेरेंट से बने हैं, तो सभी भाई हो गए। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सना, डू यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, kind of. क्या काइंड ऑफ, इसमें क्या डाउट है मुझे ये बताओ। अगर आप लोग सेम पेरेंट से हो तो इक्वल होगे, अलग अलग फैमिली से हो तो डिफरेंट हो सकते हो, राइट? सो ए बी आर्क से बन रहा है ना, सभी ए बी आर्क से ही आ रहे हैं ना। कोई अलग आर्क यूज किया क्या मैंने? लुक हियर, हैव आई यूज्ड एनी अदर आर्क? Yes, sir. So I am using same arc. I am using same arc for making G, C, D, E, F, and all are on circle. Center पे कोई नहीं है, सबके सब सर्कल पे हैं, इस बात को ध्यान देना। So all must be equal. Do you clear here, guys? Yes, sir. अभी क्लियर है? तो आप लोगों को मैंने अभी 3 थ्योरम्स पढ़ाए हैं। प्लीज रीड द थ्योरम्स। Okay, sir. Please read it. Yes, sir. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yes. Sir, I can. अनिका, आप कुछ पूछ रहे हो? No, sir. ओके, सना आप कुछ पूछ रहे हो? No, sir. ओके, तो 3 थ्योरम आपको मैंने बताया, मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। पहला थ्योरम कहता है कि सेंटर पे एंगल जो बनेगा दैट इज डबल ऑफ सर्कल। सर्कल पे 30 है तो सेंटर पे 60। क्लियर है गाइस? दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर ये डायमीटर है सो इट विल मेक 90 ऑन द सर्कल, 90 से बनाएगा एंगल। और तीसरा कहता है सेम आर्क से सर्कल पे जितने भी एंगल्स ड्रॉ करने कर लो, ऑल विल बी इक्वल। डू यू क्लियर हियर? Yes. तो अब बस आपके थ्योरम्स यहाँ फिनिश होते हैं एंड वी विल सी सम प्रॉब्लम्स। थ्योरम्स आसान है बट प्रॉब्लम्स आसान नहीं है गाइस। इट्स आसान है, करना कुछ नहीं है, बट दिमाग लगाना है और देखना है अच्छे से। देखो यहाँ पे पूछ रहा है एक्स, पहले आप अच्छे से फिगर देखो, क्या क्या इंफॉर्मेशन है फिगर में, बताओ मुझे, टेल मी। So we have that one of the angles, angle A is 30. And then there's a chord BC which is making two angles A and D. Angle DBC is 70, whereas angle BCD I think is X. ओके, चलो अभी सना, BCA. Sana, can you hear me? Yes, sir. We have to find x. What we need to find? X. X. तो अगर आपको, can you see this triangle here? Yes, sir. अगर आपको इसमें से 2 एंगल्स, ये एंगल्स गिवन है और ये एंगल मिल जाए तो x निकाल लोगे? Yes, sir, because we make up 360. निकल जाएगा, right? Yes, sir. Now look here, BC arc. Can you see the BC arc? Yes, sir. BC arc से एंगल A बन रहा है. Okay, I will use another pen. BC arc से एंगल A बन रहा है. Can you see that? Can you see? Yes, sir.
और BC आर्क से ही आपका क्या बन रहा है, D भी बन रहा है. Can you see that? Yes. So both will be what? Both will be 30. 30. Good. तो अगर ये 30 मिल गया, ये 30 मिल गया मुझको, ये 70 है, तो कितना हो जाएगा? This 80. X will be 80. सॉल्व हो गया? Yes, sir. It's quite easy. Yes, sir. Next question. Moving. अब देखो, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है सना, आप बताओ मुझे. What information you are getting here? O is the center. Good. PB. ये AB हो जाएगा फिर तो. डायमीटर. अच्छा, डायमीटर से कहीं एंगल बन रहा है क्या? देखो तो जरा. Yes, sir. कहाँ बन रहा है? P, on P. On P. So it makes 90. Yeah, so 90 plus 35. तो ये कितना हो जाएगा? ये ट्रायंगल है ना हमारा APB. And कितना हो जाएगा ये? 125 हो गया. तो ये 125 हो गया. गुड. तो निकालो, ये निकालो. Sir, 55. मैं भी चेक कर लेता हूँ. 125 आपने बोल दिया है. So 180 minus 125, that's going to be 55. Good. It's going to be 55. अच्छा, एक बात बताओ जरा, देखो तो ये एंगल A और एंगल Q किसकी मदद से बन रहा है? By which arc? Arc AQ. AQ से बनेगा? मतलब AB और QB AQ से बन जा रहा है? I'm talking this angles, Sana. I'm talking this angles. PB की मदद से बन रहा है. Can you see a line here? Yeah. Or can you see another line here? So what do you think? X must be equals to A. Yes. So this must be what? 55. Yeah. समझ में आया कैसे बनाएंगे हम इसको? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं. Now coming to another one. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को. Can you see here, guys? Yes. Can you see here? अब इसमें क्या है अनिका, आप बताओ क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? Angle B is equal to 25 and angle B is equal to 35 degree, and in the middle we have the angle X. तो एक बात बताओ, अगर ये मिडिल वाला, सेंटर वाला किससे बन रहा है? BC से बन रहा है? Yes, sir. अच्छा, BC से ही ये बन रहा है यहाँ पे AB? Yes, sir. तो अगर मुझे A मिल जाए तो क्या मैं X निकाल लूंगा? Very equal. सना, can you hear me? Yes, I can. अगर A मिल जाए तो X निकल जाएगा सना? Oh, yes. चलो, तो पहले तो A निकालते हैं जी. So let's see here. देखो, can you see this triangle? What kind of triangle it is, Sana? Can you tell me what kind of triangle it is? Isosceles. So A is also going to be 25. ये एंगल हो जाएगा जी 25. Good. Anika, what is this triangle? What kind of triangle it is? So this one is probably. So this angle would be 35. Isosceles होगा ना? क्यों? Because of radius. Because of radius. तो ये हो गया 25 और ये हो गया 35. So guys, आप इसको ऐड करके बताओ ये कितना हो जाएगा टोटल एंगल? 60. So ये 60 हो गया, तो x कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे? 60. सेम थोड़ी होता है, डबल होता है ना? Yes, 120. Do you clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Okay. Next मैं दे रहा हूं. तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं गाइस. चलो इसको आप लोग पहले ट्राई करो जरा. Let's do it. आपको क्या निकालना है? You have to find x. क्या निकालना है आपको? ये एंगल. तो अगर ये एंगल मिल जाए तो आप वो निकाल लोगे? together these angles make 360. ये देखो, ये एंगल नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो हम वो निकाल. यस, ये सेंटर पे 360. 360 में से 120 90 माइनस कर दो, क्या बच रहा है?
That's 150. So x is 75. Let me check. 210. Good. ये 150 आ जाएगा सना. Can you see that? Yes, sir. And that will be the half. So it will become 75 degree. बहुत simply done. Done Sana, done. So there's still a lot of disturbance with Anika's mic. Whenever she unmutes, I can't hear you. Okay, कोई बात नहीं. अनिका आज आपने uninstall करके install किया था. Yes, sir. But still problem है. I don't think there's noise anymore. हाँ Is there noise still? हाँ नॉइज तो है बिकॉज पहले जो क्वालिटी थी वो नहीं है. ओके एक काम करते हैं आफ्टर द क्लास मैं आपके साथ बैठता हूँ. ठीक है नो इशू. Oh, but I've actually made my fan okay now, so there shouldn't be the noise. ओके नो इशू. चलो देखते हैं. मैं आफ्टर द क्लास आई विल सिट विद यू. डोंट वरी. ओके गाइस लुक हियर. वी हैव टू फाइंड x. व्हाट वी नीड टू डू हियर? वी नीड टू फाइंड x. Oh. तो अब देखो इसको. कैन यू सी दिस ट्रायंगल हियर? Yeah. Okay, if you see this triangle, this makes how much? 90? Because of diameter? It's 90 degree. Because of diameter it will be 90, right guys? Yes. Yes, sir. ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? This angle will become how much? 40 degree. It's 40 This degree. becomes 40. This becomes 40. अब मैं रब कर रहा हूँ. Now you know very well CD is also a diameter. CD is also a diameter, so it makes 90. Yeah. So it makes 90. So this angle is 40. So x will be what? 50. X will become here 50 degree. Understand guys? Yeah. तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको होंगे. सो आप प्लीज नोट डाउन करो. सना आप RS अग्रवाल का सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे. ठीक है क्लियर है? हेलो. I don't have to do any examples in the middle. नहीं एग्जांपल्स भी करना है. यू हैव टू डू द एग्जांपल्स आल्सो. Which one? ओके हाँ Sare examples. yes all examples. ठीक है Fine. yes you have to do all examples and आप try करो. And Anika for your it will be third exercise I think. Okay. And to आप एक the बार चेक कर लेना. आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे दिखा देना कि सर ये वाला करना है कौन सा करना है. बिकॉज RD शर्मा में थोड़ा सा मेरे पे डिफरेंस है. ठीक है यस Yeah. सना आप कुछ बोल रहे थे. Yes, sir. I was asking something. Now I हाँ forgot. बोलिए. चलो कोई नहीं आप पूछ लेना. नो इश्यू. ठीक है So my mom wants to talk to you right now. ओके ठीक है. अभी क्लास एंड करने के बाद हम करते हैं. सो अनिका डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? no, sir, but I'll call you regarding the Zoom after this. I'll Yes, just आप एक काम करो. मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ. गिव मी अ मोमेंट. okay. है ना व्हाट्सएप पे लिंक भेज देता हूँ. Joint families and there's always commotion in the house. That's the problem. They're doing something or the other in the house. That's why there's so much noise. ओके नो इशू. एक काम करते हैं ना. आपका कौन सा यूज करते हो? विंडोज यूज करते हो क्या है? Sir, I have a Chromebook and I have the Zoom ka app. I don't use the. ओके तो जूम का ऐप है तो उसको आप अपडेट कर लो नहीं तो. ठीक Okay. है I'll do that. यस यू कैन अपडेट इट. कोई दिक्कत होगी? My house noise, then the Zoom noise. हाँ I feel like most of the sounds that are coming up from my house rather than the like the Zoom. ओके बट नहीं उसमें जो प्रॉब्लम होगी हम ठीक कर देंगे. डोंट वरी. Okay, sir. उसमें सेटिंग होता है. नॉइज कैंसिल उसका सेटिंग आता है. वो सेटिंग हम कर देंगे. ठीक है Yes, we'll do that. ओके देन यू कैन लीव इट. Hello. Hello. Bye. Hello.